بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی 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 آج کی کلاس میں ہم نے آئی ایس 23 کو کنٹینیو کرنا ہے، جو کل کی کلاس میں ہم نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا۔ انفیکٹ کل کی کلاس میں ہم نے اس کے میجر جو کمپیوٹیشنل آسپیکٹس ہیں وہ تقریباً ڈسکس کر لیے تھے۔ اب کچھ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے کچھ فردر ایشوز ہیں اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کے اوپر ڈسکشن بہت ضروری ہے، وہ اب ہم کرنے لگیں گے۔ آج کی کلاس کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے، اور اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ نیکسٹ اسٹینڈرڈ جو کہ آئی ایس 20 ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ڈپینڈنگ اپون کہ ٹائم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ چیپٹر میں نے آپ کو پڑھنے کو دیا تھا، چیپٹر نمبر 15، اور امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اس کو پڑھ کے آئے ہوں گے تاکہ ہماری پروڈکٹیو ڈسکشن رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب ریڈنگ کا جو ٹاسک ہوگا یہ آپ کو میں پہلے دیا کروں گا تاکہ آپ چیپٹر پڑھ کے آئیں، تاکہ میکسیمم ہم بینیفٹ ٹائم کا یوٹیلائز کر سکیں، اور آپ کے کویشچنس کی کوالٹی بھی پھر امپروو ہو جائے گی۔ جب آپ ایک چیزوں کو ریڈ پہلے سے کر کے آئیں گے نا تو آپ کے کویشچنس کی کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہے۔ آپ کے بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور اس کا کویشچن آپ کے مائنڈ میں بن سکتا ہے، لیکن جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو بہت سارے سوال آپ کے وہیں پہ آنسرڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اوبیسلی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ آپ 100% چیپٹر کو پڑھ کے سمجھ بھی لیں، یہ آپ سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں ہے، وہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے، ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی یاسین صاحب۔ سر نہیں، بس یہی کہنا تھا، اگر آپ ہمیں پہلے پڑھنے کا دیں گے نا تو آپ جو سمجھاتے ہیں وہ بہت آسان لینگویج میں اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہوتا اچھا ہے، اور یہ اچھا بہت مشکل انگلش میں سمجھا لکھا ہوتا اچھا دیکھیں اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہمارا کورس انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس طریقے سے، تو میں جتنے بھی اسٹینڈرڈ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے نا تو وہ میرا پیٹرن وہی ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ ایسی۔ جزاک اللہ سر لیکن خیر، لیکن بہت ہاں اچھا۔ لیکن ہاں لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو پروفیشنل اسٹڈیز کے اندر آپ کو ان کرنا ہے اور کمپریہنشن ڈیولپ کرنی، کیونکہ دیکھیں آگے جب اسٹیجز جو آئیں گی آپ کی اسٹیج 5 اور 6، یہاں پہ کیس اسٹڈی بیس پیپر ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو کویشچن نہیں دیا ہوگا کہ آپ نے یہ 4 فگریں دی ہوئی ہیں آپ نے کیلکولیٹ کر لیا۔ کیلکولیشن تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب کمپیوٹر سے ریپلیس ہو چکی ہوئی ہے، اب اینالیٹیکلی آپ نے کیس کو اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ باقی پروفیشنل باڈی کو بھی دیکھیں، اے سی سی اے کو دیکھ لیں، باقی سیما کو دیکھ لیں، یا کوئی اور آئی سی اے ڈبلیو کو دیکھ لیں، ان کے جو فائنلز کے جو پیپر ہیں وہ کیس اسٹڈی بیسڈ ہے، اور ہمارا بھی الحمدللہ اب تو انہوں نے اس کو کیس اسٹڈی بیس کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارا مینیجر لیول 4 ہے، یعنی مینیجر لیول 2 میں جو ایم 4 ہے، یہ جو سبجیکٹس ہیں، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہو گیا، یہ ہمارا کارپوریٹ لا ہو گیا، اور یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ کارپوریٹ رپورٹنگ، یہ بیسیکلی آپ کو اگلے سیشنز کے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ بالکل اس کو بیسک سے لے کے، اب دیکھیں نا ہم نے تو ڈیبٹ کریڈٹ کو بھی ڈسکس کیا ہے اس کے اندر، یہ سبجیکٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ پورے اس سے اگر آپ کریکولم اٹھا لیں، اس کا پورا سلیبس اٹھا لیں، تو کہیں بھی اکاؤنٹنگ سائیکل کا بھی ذکر نہیں ہے، ہم نے پورا اکاؤنٹنگ سائیکل ریوائز کیا، تو لیکن وہ اس کا مقصد تھا پراپر، وہ ایک ضروری ہوتا ہے ریوائز کروانا، کیونکہ آبویسلی ہم تھوڑا سا اس میں بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کافی عرصے کے بعد ری جوائن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ کور کرنا ہوتا ہے، وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں بہت سارے ایشوز، تو وہ اس چیز میں آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو وہ چیز مشکل ہے، مشکل کے لیے ہی تو آسان بنانا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ایس 23 تھینک یو سر۔ جو ہاں جی آئی ایس 23 کا جو بیسک ہمارا ایریا ہے، اب اس کو ہم ایز اے اسٹینڈرڈ لے کے چلیں گے جی، ٹھیک ہے جی، ایز اے اسٹینڈرڈ کے یہ جی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، اچھا آپ لوگوں کے پاس نا، میں اب چونکہ کچھ لوگ دوبارہ جوائن کرتے ہیں یا ری جوائن کرتے ہیں، اس کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یا میکسیمم فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونا چاہیے، موبائل کا نہیں، سمپل جو کیلکولیٹر ہے ہمارے پاس سائنٹیفک وہ ہونا چاہیے، نوٹ بک،
پین اور یہ جو بک ہم سامنے شیئر کرتے ہیں, یہ بکس آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں ہونی چاہیے, تو آپ اس کا میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کو صرف سن لینا وہ کافی نہیں ہے, اس میں میں کچھ چیزیں ڈیلیبریٹلی لکھواتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی. IS 23 ریگولیٹس دی ایکسٹینٹ کہتے ہیں کس حد تک ہم کر سکتے ہیں, to which the entities are allowed to capitalize borrowing cost incurred on money borrowed to finance the acquisition of certain assets. ٹھیک ہے جی, بڑا سمپل سی بات ہے کہ وہ کس حد تک ہمیں الاؤ کرتا ہے IS 23. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے, تمام کی تمام بوروئنگ کاسٹ وہ کیپٹلائز کرنے کا نہیں کہتا آپ کو. اور یہ جو ورڈ کیپٹلائز ہے یہ آگے کے اسٹینڈرڈ میں بھی بڑا یوز ہوگا. کیپٹلائز کا مطلب ہوتا ہے میکنگ پارٹ آف سم ایسٹ. کیپٹلائز مینس میکنگ پارٹ آف سم ایسٹس کاسٹ. ٹھیک ہے, کسی ایسٹ کی کاسٹ کا پارٹ بنانا, یہ کیپٹلائز کہلاتا ہے. بوروئنگ کاسٹ مسٹ بی کیپٹلائز. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں مسٹ کا ورڈ لکھا ہوا ہے, یہ آپ دھیان رکھنا ہے, یہاں پہ مے کا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ MCQs میں نے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سیم آپشن دیا ہوگا, بوروئنگ کاسٹ may be capitalized as a part of cost of the asset, اور ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ borrowing cost must be capitalized. تو آپ نے یہ صرف may اور must کی وجہ سے آپشن کریکٹ اور صحیح ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ بھی اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس میں لیول آف انفورسبلٹی کتنا ہے, آپشنل ہے یا کمپلسری ہے. اگر آپ کا یہاں پہ ورڈ ہوتا مے کا تو یہ آپشنل ہو جاتا, لیکن یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے مسٹ, تو یہ کمپلژن ہے آپ کے اوپر, آپ نے کمپلسن کرنا ہے, اسے لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایز اے پارٹ آف دی کاسٹ آف ایسٹ اف دی ایسٹ از ون which is necessarily takes a substantial time to get ready for its intended use or sale. ٹھیک ہے, اب اس میں دو قسم کے ایسٹ آپ بنا سکتے ہیں. ایک ایسٹ تو وہ ہے جو آپ اپنے ہی استعمال کے لیے بنا رہے ہیں, جیسے آپ نے ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے لگے ہیں اور اس بلڈنگ میں آپ اپنا ہی آپریشن پرفارم کریں گے. لیکن اگر آپ بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کسی کو بیچنے کے لیے, تب بھی وہ آپ کا سبسٹینشیل ٹائم ریکوائرڈ کر سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بوئنگ طیارے ہوتے ہیں یہ بھی کانٹریکٹ کے اوپر بنائے جاتے ہیں, اور جو کمپنی ہے بوئنگ, یہ کمپنی ان طیاروں کو بنا رہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے, بعض اوقات تو 2 سال لگ جاتے ہیں اور وہ طیارہ بنتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن وہ پھر انہوں نے آگے سیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے استعمال کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کو سیل کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسٹ چاہے آپ اپنے استعمال کے لیے بنائیں یا اس کو کسی کو سیل کرنے کے لیے بنائیں, اگر وہ سبسٹینشیل ٹائم لے رہا ہے تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے جو انٹرسٹ ہوگا وہ آپ کیپٹلائز کریں گے. اب سبسٹینشیل ٹائم یہاں پہ ورڈ ہے, یہ نشانی ہے کہ یہ پرنسپل بیس گائیڈ لائن ہے, اور یہاں پہ آپ نے پروفیشنل ججمنٹ یوز کرنی ہے. یعنی اکاؤنٹنٹ نیڈ ٹو ایکسرسائز پروفیشنل ججمنٹ, professional judgment to determine کہ what is substantial. اب میرے لیے substantial 15 دن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے substantial 1.5 سال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کمپنی کے لیے substantial 3 مہینے ہے, کسی کمپنی کے لیے substantial 10 مہینے ہے. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا, اور پھر وہ چیز اس کو جسٹیفائی بھی کرنی پڑے گی کہ میرے لیے substantial کیوں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال وہ پروفیشنل ججمنٹ ہے, اس پہ IAS نے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا. اچھا, اب اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں. میں نے سے کہا تھا کہ IAS جو ہمارے ہیں اسٹینڈرڈز ہیں, یہ ڈیفینیشنز بتاتے ہیں اور یہ آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. تو IAS 23 میں ڈیفینیشنز ہیں جی. سب سے پہلے بوروئنگ کاسٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوروئنگ کاسٹ از این انٹرسٹ ایکسپینس, لیکن بوروئنگ کاسٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ براڈ ٹرم ہے. اگر میں آپ کو براڈیبلٹی کے حساب سے بتاؤں نا,
तो सबसे ज्यादा ब्रॉड टर्म है बोरोइंग कॉस्ट। हेलो जी जी सर, ये थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, पहले वाली जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ना उसमें जरा लेके आइएगा। अच्छा जी, एक मिनट। जी हाँ सर, ये जो पहली लाइन है ना, मतलब मैंने इसको रीड आउट किया था, तो ये पहली लाइन से जो मुझे समझ आ रहा है ना, बोरोइंग कॉस्ट रेगुलेट्स द एक्सटेंट टू विच एंटिटीज आर अलाउड, मतलब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज होंगी जिनको ये अलाउ होगा कि वो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर सकती हैं या नहीं? नहीं, यहाँ पे एंटिटीज जो है ये जनरल वर्ड है, हर एंटिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जो पहले आ रहा है ना विच एंटिटीज, मतलब ये फिर ये तो यही शो कर रहे हैं ना कि कौन सी एक्सटेंड एंटिटीज टू है। विच, एक्सटेंड टू विच, टू विच, अच्छा ये इसके साथ है। ये इसके साथ है जी। ठीक है ठीक ये है ठीक है, हाँ जोड़ा इसका बनेगा। ठीक है। हाँ वो मतलब मैं इसको देख रहा था ना कि शायद यहाँ पे अभी एंटिटीज भी कैटेगराइज होंगी कि किसको अलाउ है और किसको नहीं है। सर असल में ना ये जो है ना ग्रामर के बड़े चीज़ें, तो कभी हमें कोई आज से 20 साल पहले हमने ग्रामर पढ़ी थी, तो उस वक्त हमारे एक उस्ताद उन्होंने बताया कि जी ये कॉमे की वजह से ना बड़ा फर्क बन जाता है। जी यहाँ पे मतलब पंक्चुएशन की है थोड़ी बहुत ना हाँ, इधर उधर। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड टू विच, ये एक्सटेंड टू, एक्सटेंड ठीक है, एक्सटेंड टू विच। विच एंटिटीज। अब इसको अगर आप विच एंटिटीज पे कर लेंगे तो ये अलग जुड़ा बन जाएगा, ठीक जी है। हाँ हाँ जी, हाँ, आपने जुड़ा अलग बना दिया, लेकिन ये जुड़ा समय ये वाला है। अच्छा, उसमें जैसे वो कहते हैं ना कि राइट रोको सर, मत जाने दो, अगर रोको के बाद कॉमा है तो उसका आप डिफरेंट अलग है, जानेंगे। अगर रोको मत के बाद कॉमा है फिर उसका मतलब अलग है, हालांकि तीनों वर्ड सेम है, ठीक है। जी तो जी ये होता है बहरहाल, ये इंग्लिश के अंदर है। गुड। और ये आई वुड इंकरेज के यू पीपल आस्क दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया करें। इट्स वेरी गुड। ओके जी, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by entity in connection with the borrowing of funds। अच्छा, एग्जांपल इनकी दी हुई है, ये एग्जांपल जरा देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड विद यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड एज डिस्क्राइब इन IAS 39। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है ना IAS 39, ये अब जी खत्म हो गया है, इसी जगह पे अब आ गया IFRS 9, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इसको लिख लें, IFRS 9, ठीक है। अब हम IFRS 9 इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे डिटेल, तो अब इसकी स्ट्रेटेजिक लेवल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन है, वो इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो IFRS 9 जो है ये हमें कुछ एक बताता है मेथड, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ठीक है। अब ये क्या है ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू अगर किसी ने पढ़ा हो ना लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, किसी ने अगर पढ़ा है, तो उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड होता है, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको लीजिंग में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड के थ्रू अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट कहलाती है, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस लीज रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 लीजेस, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे भी डिस्कस कर लें कि जो IFRS 16 है ये भी न्यूली स्टैंडर्ड है, गो कि अब इतना नया नहीं है, 2-3 साल इसको भी हो गए हैं, लेकिन बहरहाल ये रिलेटिवली न्यू स्टैंडर्ड है लीजिंग का, और इसके अंदर बिल्कुल एक शिफ्ट हो गया है पूरा मैकेनिज्म लीजिंग का, ठीक है। तो लीजिंग में जो लेसी होता है, जिसने वो एसेट किराए पे लिया होता है, ठीक है, तो वो जो किराए पे लेना होता है ना इंटरेस्ट, उस पे जो इंटरेस्ट वो पे करता है वो भी आप फाइनेंस कॉस्ट में चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप नोट कर लें कि बल्कि यहाँ पे साथ में ही कहीं लिख लें ताकि आपको फ्यूचर में जब आपको मैं IFRS 16 पढ़ाऊं तो आपको ये बात फौरन रिवाइंड हो जाए कि देयर इज नो concept of finance lease with respect to the lessee। लेसी वो है जिसने वो एसेट इस्तेमाल के लिए लिया हुआ है। अब मैंने अगर वो एसेट इस्तेमाल के लिए लिया है तो चाहे मेरा वो एसेट मैंने कितने भी अरसे के लिए लिया हो तो मुझे उस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है,
وہ IFRS 16 کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو لیزنگ کا اسٹینڈرڈ تھا, اگر کسی نے پڑھا ہے اپنی گریجویشن اسٹڈیز کے اندر, تو وہ IAS 17 شاید اس نے پڑھا ہوگا, جس کے اندر وہ آپریٹنگ اور فائنانس لیز کی ڈسٹنکشن کرتا ہے لیسی کے پرسپیکٹو سے. لیکن جب IFRS 16 جب سے امپلیمنٹ ہو گیا ہے, تو لیسی یعنی جس نے ایسٹ لیا ہے, لینے والے بندے کے لیے فائنانس اور آپریٹنگ لیز کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس نے اب اس کو ایز اے فائنانس لیز ہی ریکارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا آپریٹنگ لیز, یا نو کانسیپٹ آف فائنانس لیز یا آپریٹنگ لیز, یا اس کو ہاں کنفیوزنگ پوائنٹ بالکل ہے, کیونکہ اس لیول پہ یہ ڈسکس ہم ڈیٹیل سے نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یا اس کو اس ورڈ کو اب ایسے کر لیں, یا اس کو یہ لکھ لیں کہ دیر از نو ڈسٹنکشن, یہ زیادہ بیٹر ورڈ ہے, کہ دیر از نو ڈسٹنکشن, there is no distinction of lease with respect to lessee. یہ زیادہ آسان ہے. چلو میں نے فائنانس لیز کا ورڈ ڈیلیٹ کرتا کہ آپ کو کنفیوز نہ رہے. تو اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے, بی پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایک ایسٹ کرائے پہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں, تو وہ بھی بوروئنگ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سوال یہ کریں گے کہ سر یہ کیسے ریلیٹ کرے گا, یہ ریلیٹ کیسے کرے گا؟ دیکھیں سنیں, مثال کے طور پہ آپ ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, سنیے گا پلیز, آپ ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں آپ نے ایک مشینری لیز پہ لی ہے. ٹھیک ہے, اور اب بلڈنگ تو بننی ہے, اب دیکھیں نا, اب آپ نے ایک پلازا بنانا ہے, آپ نے موٹر وے بنانی ہے, یا آپ نے لیٹ سپوز ملٹی سٹوری یا ملٹی سمجھ لیں کہ ایکڑوں کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ انڈسٹریل پارک بنانا ہے. اب انڈسٹریل پارک کوئی دنوں میں تو بننے والا نہیں ہے, وہ سالوں لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھ لیں تو لیٹ سپوز کوئی اگر پوری ایک یونیورسٹی کسی نے کنسٹرکٹ کرنی ہے, یا پوری ایک بہت بڑا مال شاپنگ پلازیز کنسٹرکٹ کرنے ہیں, تو وہ کم از کم 2-3 سال 4 سال لگتے ہیں. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں, ان کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ مشینری لیزنگ پہ لے لیتی ہیں. اب اس مشینری پہ جو لیز پہ لیتی ہیں, اس پہ وہ انٹرسٹ بھی پے کرتی ہیں. وہ جو انٹرسٹ آپ پے کر رہے ہیں وہ بھی اس کی کاسٹ کا پارٹ بنے گا. کس کی؟ بلڈنگ کی کاسٹ کا پارٹ بنے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایکسچینج ڈفرنسز ارائزنگ فرام فارن کرنسی بوروئنگز to the extent they are regarded as adjustment to the interest cost. اچھا, یہ IAS 21 ہے, یہ اس سیمسٹر میں تو ہم نہیں ڈسکس کریں گے. IAS 21 ٹھیک ہے جی, فورن کرنسی کے حوالے سے ہے یہ. لیکن بہرحال اس کو یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ڈالر میں لون لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ڈالر کا ریٹ جاتا ہے اور آپ کو انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ دینا پڑتا ہے, تو اب وہ جو زیادہ انٹرسٹ ہے, وہ جو فار ایکسچینج ریٹ ڈفرنس ہے, وہ بھی آپ کا انٹرسٹ کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ انٹرسٹ نارملی پے کر رہے ہیں نا روٹین میں, اس کے علاوہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ ڈفرنس کی وجہ سے کوئی زیادہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, یا کم انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, یا ایکسٹرا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کا بوروئنگ کاسٹ کے اندر اکاؤنٹ فار ہوگا. اس کے اوپر ڈیٹیل ہم نہیں ڈسکس کر سکتے کیونکہ یہ فارن کرنسی کا ڈیٹیل ایشو ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے فارن کرنسی کے کچھ کانسیپٹ دینا ہے, جیسے ہمارے ڈائریکٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, انڈائریکٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, پریزنٹیشن کرنسی کیا ہوتی ہے, ٹرانسلیشن کرنسی کیا ہوتی ہے. یہ کچھ ایڈوانس کانسیپٹس ہیں جو انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیول میں جا کے ڈسکس کر لیں گے. تو بوروئنگ کاسٹ یہاں پہ ایگزامپلز انہوں نے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ ہماری سر جی سر یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ ادر کوسٹ انٹرسٹڈ ادر کاسٹ, ڈیفینیشن بالکل ساتھ. سر اس کے اندر تو بینک چارجز وغیرہ بھی نہیں آنے چاہیے, جیسے صرف بورنگ کے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ؟ نہیں, ادر کاسٹ کی آ گئی نا, یہ نیچے بتا دیا نا ایگزامپل سے. سر وہ تو سارا کچھ ہے ہی, بٹ اگر صرف بورنگ آف فنڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے, جیسے اوپر لکھا ہوا ہے کنیکٹڈ ود بورنگ آف فنڈ, اس میں تو صرف اس میں بالکل اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کاسٹ پے کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرانزیکشن کاسٹ اسی بوروئنگ سے ریلیٹڈ ہے, تو بالکل وہ دیکھیں جب افیکٹو انٹرسٹ ریٹ میتھڈ آ گیا نا, تو اس نے ہر چیز کو انکارپوریٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ورڈ ہے نا جی, یہ بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے, افیکٹو انٹرسٹ ریٹ میتھڈ. اس کے اندر جو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ ہے نا,
وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر خود بخود آ جائے گی. اوکے, اور کوئی سوال؟ اوکے جی, کوالیفائنگ ایسٹ. کوالیفائنگ ایسٹ کے اوپر جی بڑا اس وقت کنفیوژن ہے, اور میں تھوڑا سا اس پہ اسٹانش بھی ہوں کہ اتنا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کوالیفائنگ ایسٹ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو. کوالیفائنگ ایسٹ کیا ہے جی؟ جس کو بنانے میں زیادہ وقت لگے. ٹھیک ہے جی. اب زیادہ وقت میرے لیے 15 دن ہے, اس کے لیے 3 مہینے ہیں, اس کے لیے 9 مہینے ہیں, اس کے لیے 1 سال ہے. تو زیادہ وقت لگے, ٹھیک ہے, یہ ہے جی میری کمپنی کے لیے کوالیفائنگ ایسٹ وہ ہوگا جو 15 دن سے زیادہ ٹائم لے گا. ٹھیک ہے, تو میرے لیے 15 دن سے جو زیادہ ٹائم لے گا وہ کوالیفائنگ ایسٹ ہے, اور میں نے اس چیز کو جسٹیفائی بھی کروانا ہے آڈیٹر کو. اس کے بعد دوسری کمپنی ہے, اس کے لیے 3 مہینے ہے. لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں پریکٹس میں تو جو 3 سے 6 مہینے سے اوپر, یعنی یہ جو پیریڈ ہے نا 3 سے 6 مہینے, اس سے زیادہ جو ٹائم لیتا ہے نا ایسٹ بننے میں, وہ ہمارا کوالیفائنگ ایسٹ کہلاتا ہے پریکٹس میں. لیکن آئی ایس نے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا کہ جی یہ ٹائم لمٹ ہے, آئی ایس نے آپ کو اوپن رکھا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے ایگزامپل بھی دے دی ہیں آپ کو. ایگزامپل سے مراد ڈیپینڈنگ اپون دی سرکمسٹانس. آپ دیکھیں آئی ایس کتنا زیادہ محتاط ہے کہ لوگ اس کا کوئی چور سوچنا نکال لیں. بھائی لوگ چور سوچ اسی لیے نکال لیتے ہیں نا کہ جی یہ اسٹینڈرڈ کے اندر یہ ورڈ تھا تو ہم اس کے اندر ہمارے لیے یہ ہے, کوئی مس انٹرپریٹ نہ کر لیں. اب چور سوچ تو میں نے بڑا سلینگ ورڈ یوز کر لیا, کہ کوئی اس کو مس انٹرپریٹ نہ کر لیں یا اس کے لیے کوئی اور کوئی مطلب نہ نکال لیں, غلط مطلب. اسی لیے آئی ایس جو ہے وہ بڑا محتاط ہوتا ہے بعض اوقات ورڈنگ چوائس آف ورڈز کے اندر. انشاءاللہ آگے جب آپ دوسرے اسٹینڈرڈ دیکھیں گے تو آئی ایس نے اپنے آپ کو بڑا محتاط رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں 2 کنڈیشنز ایسی ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں, لیکن پھر بھی آئی ایس نے اس کو 2 کنڈیشن بنایا, ایک کنڈیشن نہیں بنایا. ٹھیک ہے, حالانکہ ہم کہیں سر یہ بھی تو وہی چیز بات کرے جو اوپر اس نے بات کی ہے, تو ہم وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس نے اپنے آپ کو مزید سیکیور کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ والا ایشو اس میں ڈسکس نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں یہ پرنسپل بیس گائیڈ لائنز ہیں, یہ رول بیس نہیں ہے. پرنسپل بیس جب گائیڈ لائنز ہوتی ہیں نا تو لوگ اپنی انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو اپنی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے پیچھے سالڈ کوئی فیکٹ یا سالڈ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا, اب انہوں نے ایگزامپل دی ہیں انوینٹریز. اب انوینٹریز وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے صبح بنائی اور شام میں کمپلیٹ ہو گئی. انوینٹریز وہ ہیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل ہم نے گھر بنانا ہے کسی کے لیے, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی بوئنگ طیارے بنانے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ انوینٹریز ہیں. مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں, یہ بھی 1 دن نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ہم اپنی پیپسی کی بات کریں تو جو ہمارے گلاس کی لائن تھی جو ہم نے بھی 14-16 میں لگائی تھی, وہ تقریباً 1.5 سال لگا تھا اس کو لگنے میں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ہمارا کوالیفائنگ ایسٹ ہے. پاور جنریشن فیسلٹیز, یہ بھی بہت ٹائم لیتی ہیں. انٹینجیبل ایسٹس, اس کے اوپر پورا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے آئی ایس 38. دیکھیں میں آپ کو ڈیلیبریٹلی اسٹینڈرڈ کے نام یاد کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اسی لیے میں نام ساتھ لکھتا ہوں تاکہ جب آپ اسٹینڈرڈ پڑھیں تو آپ کے لیے نئی چیز نہ ہو. یہاں پہ آپ لکھیں گے ساتھ میں, جیسے ہی آپ آئی ایس 38 پڑھیں گے یا ریوائز کر رہے ہوں گے آپ کا کنیکشن اس سے جڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیلیبریٹلی میں اسٹینڈرڈ کے ورڈز نام, بلکہ میں نے تو آپ کو کلاس کے شروع میں ہی ایک لیکچر کے اندر ہر اسٹینڈرڈ کے نام بتا دیے تھے, جب آپ کو میں نے ایک کوشچن کروایا تھا پورا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا, جس کے اندر میں نے ہر آئٹم کے آگے اس کا ریلیونٹ اسٹینڈرڈ میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ جی یہ اسٹینڈرڈ میں آگے یہ پڑھیں گے. تو وہ جو پیج ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ جب آپ پورا کورس پڑھ لیں گے تو اس پیج کو ہم دوبارہ ایک دفعہ وزٹ کریں گے کہ دیکھیں جی یہ ہم نے پیج بالکل کلاس کے شروع میں دیکھا تھا جس میں ہر اسٹینڈرڈ کی ہم نے کانٹینٹس کو ڈیفائن کیا تھا. اب یہ پیج جو ہے یہ دوبارہ ریوزٹ کریں. جی, اس کے بعد ہے جی انویسٹمنٹ پراپرٹی. انویسٹمنٹ پراپرٹی ڈیل ہوتی ہے جی آئی ایس 40 میں. ٹھیک ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہ آئی تھنک ہم کل اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ہم آج کمپلیٹ کر لیں آئی ایس 20. لیکن انویسٹمنٹ ایکسکیوز پراپرٹی می سر. وہ پراپرٹی. جی بیٹا. سر یہ کوالیفائنگ ایسٹس میں انٹینجیبل ایسٹس جو ہیں اس کی ایگزامپل دے دیں کہ یہ کس طرح سے کوالیفائنگ ایسٹ ہو سافٹ سکتا بیٹا, ہے. سافٹ ویئر. جی وہی تو ایک میرے سافٹ ذہن ویئر میں ہے. تھا. تو سر اس کو کتنا ٹھیک ہے, ٹائم لگ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ آپ مجھے بتائیں اب مائکروسافٹ ونڈوز اگر بننا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آپ نے مائکروسافٹ ونڈوز بنانا ہے, اس طرح کا اس لیول کا سافٹ ویئر بنانا ہے, ای آر پی ڈیولپ کروانی ہے, اپنی کسٹمائز ای آر پی بنانی ہے, تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟
10 दिन तो नहीं लगेंगे ना जी वो तो सर सालों लग जाते हैं सर हाँ प्रोजेक्ट जी इम्प्लीमेंट करते करते। जी 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 बिल्कुल लगते हैं। सॉफ्टवेयर है, मूवीज हैं मूवीज। एक मूवी कितने कितने 2 दिन में तो नहीं शूट हो जाती, एक मूवी में बहुत टाइम लगता है। ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है। ठीक है, गुड पॉइंट। जी राव साहब का आपने हैंड रेज किया हुआ था। हो गया सर सवाल। ओके जी गुड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना, ये वो जमीन है जो आपने लेके बस छोड़ दी है। ठीक है, वो लेके बस छोड़ दी है और आप जो है वो समझते हैं कि जी जब कोई इसकी अच्छी कीमत मिली तो हम इसको बेच देंगे। ये इंशाल्लाह हमने पढ़ना डिटेल से, ये अगला टॉपिक हमारा है इस लाइन के अंदर। ओके जी, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर अभी आप फिलहाल याद रखें 2 हैं फिलहाल। ठीक है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, फिलहाल और बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल अभी आप ध्यान में रखें। चलें आप एक और 2 लिख लें, करेंसी भी लिख लें, करेंसी और अकाउंट रिसीवेबल। ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी फरोख्त होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की भी ट्रेडिंग होती है जिसको फैक्टरिंग कहते हैं। पता है किसी को फैक्टरिंग? हम अकाउंट रिसीवेबल अपना अपना किसी को बेच देते हैं। हाँ, करेंसी अपनी बेचते हैं, करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग करते हैं। और IAS 23 ने स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉर्मली FMCG प्रोडक्ट जो होती हैं, FMCG प्रोडक्ट्स, FMCG स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जी, जो नॉर्मली जो FMCGs होती हैं वो एक्सक्लूड होती हैं जी क्वालिफाइंग एसेट से। ठीक है जी, यानी अगर हमने इंटरेस्ट या लोन लिया है FMCG प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो मैन्युफैक्चर हो जाती हैं उन इन्वेंट्रीज को प्रोड्यूस करने के लिए बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन फिर आप उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली एक्सपेंस आउट होंगी। और आगे देखें उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि एसेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। अगर आपने बना बनाया घर ले लिया है, एक तो भाई देखे ना, आप कहें जी घर क्वालिफाइंग एसेट है, मैं कहूंगा नहीं, इस पे डिपेंड करता है वो घर आपने बनाया है या बना बनाया लिया है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है घर बनाने के लिए तो कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आप कैपिटलाइज करोगे। लेकिन अगर बना बनाया घर लिया है और लोन लेके लिया है तो उस लोन उस इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट के एसेट दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी, और ये MCQs के अंदर हमारे अक्सर स्टूडेंट जो कहते हैं जी हम सवाल तो ठीक करके आते लेकिन पास नहीं हुए, तो ये वो इस तरह के जो बारीक पॉइंट्स है ना, यही तो एग्जामिनर इनको ट्विस्ट करके आपके पास MCQs की फॉर्म में लेके आएगा। तो सर ये जो ई पॉइंट है और ये लास्ट लाइन है, इन दोनों में क्या फर्क है? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमने प्रॉपर्टीज परचेज की है फॉर फ्यूचर गेनिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। अगर आपने कोई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो आपने कंस्ट्रक्ट की है लेकिन आपने रेंट पे दे देनी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने एक प्लाजा बनाना है और उसका मकसद क्या है कि वो प्लाजे में खुद नहीं रहेगा बल्कि लोगों को दुकानें रेंट पे दे देगा, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो IAS 16 में नहीं आएगा। अभी चूंकि ये हमने ये स्टैंडर्ड पढ़े हुए नहीं है, लिहाजा इसलिए ये वेग सी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको कोशिश करता हूँ जिस हद तक मैं दे दूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आप इस्तेमाल के लिए नहीं बनाते, उसका कोई और मकसद होता है। ठीक है, उसका मकसद ये भी हो सकता है कि आपने उसको फ्यूचर के लिए रख छोड़े, जैसे भाई कल को जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बेच देंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नीचे भी तो यही लाइन कह रही है एसेट दैट आर
ready for their intended use. यही लाइन जी नीचे भी कहीं कह रहा है, ये आपने जो येलो की है हाईलाइट की, नहीं इसमें क्या नहीं, ये फर्क है? पॉइंट अलग है जी। ये वो तो आप बना रहे हो ना यार, वो तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सही, आपने आपने कहा ना कि आपने एक बिल्डिंग ले ली है, अब उसके अंदर जो रेडी है ना, तो आप उसको यानी कि रेंट लेट आउट करना चाहते हो उसकी शॉप्स को, यानी कि रेडी है, नहीं नहीं, रेडी फॉर वो यूज है। मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऊपर है ना, ये वो प्रॉपर्टी है जो आप कंस्ट्रक्ट करके रेंट पे दोगे, ये कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। क्वालिफाइंग एसेट्स की बात है कि यार ऊपर देखें ना, यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन ही यही है कि वो कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंस्ट्रक्ट हो रही है या रेडी परचेज की गई है। अगर वो कंस्ट्रक्ट की गई है तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन अगर वो तैयार खरीदी गई है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो खरीदी किस कंडीशन में गई थी या आपके पास किस कंडीशन में आई है, ठीक है। रट्टा नहीं है एफआर के अंदर, समझना है। सर जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो क्वालिफाइंग होंगे या? जी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड अगर वो उस टाइम सब्सटेंशियल टाइम को मीट करते हैं तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट होंगे, बिल्कुल होंगे। जी रहू साहब। सर अगर हम ये जो लूम्स, पावर लूम्स वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं तो वो भी हमारा जो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी वो भी क्वालिफाइंग एसेट में उस कैपिटलाइज होगी? नहीं, वो तो आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो IAS 16 के अंदर कवर की है ना आपने, वो इधर कहाँ से आ गई? ये तो इंटरेस्ट कॉस्ट की बात हो रही है। जी जी जी। बोरिंग कॉस्ट में तो इंटरेस्ट कॉस्ट की बात हो रही है। नहीं सर, इसमें हम बोरिंग करके तो फिर हम वो मंगवाएंगे ना लीज पे, वो प्लांट नहीं, मंगवाएंगे। वो तैयार था, प्लांट तैयार था। जी जी सर, इंपोर्ट करते हैं जिस हाँ, तरह। तो ये येलो पॉइंट पढ़े ना, दोबारा पढ़े जरा, इसकी उर्दू बताएं क्या बनेगी। जी फाइनेंशियल एसेट्स वाला सर, ये येलो जो लिखा हुआ है पीला, assets that are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying asset। ठीक है सर। ठीक है। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैं बता दूं आपको, मैं बार आपको इसलिए कह रहा हूं, ये तीनों सब्जेक्ट ये जो ML2 के अंदर हैं, इसमें अंग्रेजी समझना बड़ा जरूरी है। इसमें जरा सी भी अंग्रेजी अगर आपको नहीं समझ आई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सवाल ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो ये कॉर्पोरेट लॉ है, और ये तीसरा वो तो है ही कॉर्पोरेट लॉ, तो है ही अल्फाज का गेम। वहां तो एक लफ्ज में अगर आपने जरा सा कॉमा भी लगा दिया ना, कहीं पे कॉमा की वर्डिंग चेंज कर तो आपका पूरा मतलब तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां तो आपने बहुत हाईली अपने आप को जरा वो कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए एक अंग्रेजी की वर्ड थी जो ऊपर अभी हमने देखा ना, एंटिटीज टू एक्सटेंड टू विच, बिल्कुल सही है, वो कंफ्यूजन सही थी, ताकि आपने उसकी रिलेशनशिप डेवलप करनी है। ओके जी, अब ये इस पे हमने काफी डिस्कशन कर ली है। बोरोइंग कॉस्ट, जी बोरोइंग कॉस्ट, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा, इसको जरा क्विकली देखें, इसमें कोई चीज ना तो पूछें। एग्जांपल 1, ठीक है जी, वेरी सिंपल। ओके जी सर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में ये बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है, इसको लेकिन दोबारा देख लेते हैं कि एन एंटिटी शैल कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, construction or production of a qualifying asset as a part of cost of that asset. The entity shall recognize their other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. यानी जो कैपिटलाइज नहीं किए हैं आपने वो आप एक्सपेंस आउट कर देंगे, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, ये दोबारा रिपीट कर दिया जी उन्होंने पॉइंट। सच बोरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज, ये दोबारा इधर शायद दोबारा लिख दी है। अच्छा,
ये देखें, ये 2 पॉइंट आपकी जान नहीं छोड़ेंगे पूरे एफआर में, बल्कि आगे भी जाके जो स्ट्रेटेजिक लेवल का एफआर है, एडवांस रिपोर्टिंग, वहां पे भी ये 2 पॉइंट आपके सामने हर दफा रहेंगे। वो क्या है जी? ये पी और ये आर। बस ये 2 पॉइंट आपके साथ हर वक्त अटैच रहेंगे, और ये हर स्टैंडर्ड के अंदर आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे, प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी। और ये बात याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। ठीक है, ओके। अच्छा, ये इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बोरोइंग कॉस्ट कौन सी है जो आप कैपिटलाइज करेंगे और कौन सी है जिसको आप इग्नोर करेंगे, जिसको आप एक्सपेंस आउट करेंगे। इग्नोर नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। भाई या तो वो कैपिटलाइज होगी या एक्सपेंस आउट होगी। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली attributable टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और क्वालिफाइंग एसेट आर दोज बोरोइंग कॉस्ट। देखें जी, ये जरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आर दोज बोरोइंग कॉस्ट that would have been avoided if the expenditure on qualifying asset had not been made। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि ये वो कॉस्ट है जो आप नहीं इंकर करते अगर आप ये एसेट ना बना रहे होते। ठीक है जी, अगर आप ये एसेट ना बनाते रिपीट तो ये, कीजिएगा सर ये। हाँ, वो ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ये एसेट के साथ अटैच होती है। अगर एसेट बन रहा है तो ये आपने इंटरेस्ट पे करना है, अगर एसेट नहीं बन रहा तो आपने ये लोन ही नहीं लेना था। यानी इन शॉर्ट, ये जो आपने लोन लिया है ये इस एसेट को बनाने के लिए लिया है। ठीक है, अगर आप ये एसेट ना बनाते तो आप लोन भी ना लेते। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कहा गया है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ये। ओके, व्हेन एन एंटिटी borrows funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs are directly related to the qualifying asset can be readily identified। जो हमने देखा कि स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में क्या था कि जब आपने एक एसेट स्पेसिफिक बनाने के लिए वो एसेट वो जो लोन लिया है, तो वो एसेट के ऊपर जो आप बोरोइंग कॉस्ट पे कर रहे हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, वरना अगर जनरल बोरिंग होती है तो फिर आप वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं, वो फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती, उसको फिर आप उस रेट के थ्रू कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एग्जांपल नंबर 2 बड़ी सिंपल सी दी हुई है, इसको जरा क्विकली गो थ्रू करें और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि अब आप लोग इसको क्लास में रीड आउट भी करेंगे। अब 100% तो फिर अब मैं बोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है जी। थोड़ा सा इसको भी आप अभी रीड आउट करें, एग्जाम्पल नंबर 2 को जी क्वेश्चंस पूछे इसमें से आप, अगर कोई सवाल नहीं समझ आया। ठीक है जी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वेरी सिंपल केस कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है और आपने कंस्ट्रक्शन के बाद, जैसे एक अभी स्टूडेंट ने वर्ड यूज किया था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, यानी वो आपने खुद ही बनाए और खुद ही उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उसकी एग्जांपल आ गया आपके सामने कि आपने वो पावर जनरेशन प्लांट खुद ही बनाना है और खुद ही उसको फिर इस्तेमाल भी करना है, लेकिन जब आप बना रहे थे तो वो एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर कर रहा था। ठीक है, तो वो एक क्वालिफाइंग एसेट था, लिहाजा आपने उसको फिर उसके ऊपर जो आपने बोरोइंग की है उस बोरोइंग के ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो आप कैपिटलाइज करोगे। ले जी, अब एक तरीके से ये रिपीटिशन ही है जो हमने कल में पढ़ा था। तो 2.3 वाला एरिया आप गो थ्रू करें, 2.3 की एग्जाम्पल नंबर 3 और 2.4 की एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप गो थ्रू करें जी, और इसमें कैलकुलेशंस देखें अभी। ठीक है, 5 मिनट लगाएं इसको, और कोई चीज़ इसमें आपको क्लियर नहीं हो रही, कैलकुलेटर आपके साथ रखें, आंसर्स को मैच करें। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझे एग्जाम्पल 5 पे आपको मैं करवाऊंगा थोड़ी देर में।
एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 करें. एग्जाम्पल 3 जो है वो स्पेसिफिक बोरोइंग की है और एग्जाम्पल 4 जो है वो जनरल बोरोइंग की है. जी जरा इसको देखें और क्विकली जरा 5 मिनट लगाएं इसके ऊपर. सर ये एक लास्ट लाइन जो जनरल बोरोइंग के अंदर ये कह रहा है, द capitalization should not exceed the amount of borrowing cost actually incurred. हाँ जी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने इंटरेस्ट कॉस्ट 100 रुपये खर्च की है लेकिन आपने 110 रुपये कैपिटलाइज कर लिए. ये पॉसिबल है? मुझे बताएं. कि इंटरेस्ट हमने 100 का किया है और हम 110 का कर रहे हैं. हाँ नहीं, कैपिटलाइज 110 तो यही लिखा हुआ है. कहना चाहिए वो कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट आपने अगर लोन लिया 1 लाख का तो आप 110 का नहीं कर सकते, इससे ज्यादा. नहीं बोरोइंग कॉस्ट की बात हो रही है, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना. ऐसा भाई देखिए ना, आपने 100 रुपये इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो मैक्सिमम आप 100 का ही कैपिटलाइज कर सकते हो ना. आप कैसे नहीं कर सकते. ठीक है. असल जो आपका यहाँ पे आपका जो होगा ना प्रैक्टिस वो एमसीक्यूज में होगी. ठीक है. ये तो चैप्टर बड़ा सिंपल लिखा हुआ है इन्होंने, बहुत सिंपल चैप्टर लिखा हुआ है. जो आपको मैंने ग्रुप के अंदर एमसीक्यूज के नंबर भेजे थे ना, वो असल में हैं जो आपने सॉल्व करने हैं. वो मैं करवाऊंगा. बोरिंग कॉस्ट के हैं जो आपने कर. जी बिल्कुल. ऊपर लिखा हुआ है इस 23, आपने अगर देखा नहीं है शायद. मेरे ख्याल है आपने पूरा मैसेज नहीं मेरा पढ़ा था. नहीं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ा. चलें जी, बड़ी मेहरबानी. आप लोग इतना रिकॉर्ड करते हैं जी मेरे मैसेज का. ऐसी भी बात नहीं है. वो जरा उसको जब क्लिक किया था तो ऊपर से वो ऊपर बिल्कुल था, देखिए स्क्रीन की ऊपरली साइड चला गया था बॉटम पे. अच्छा जी ठीक है जी. टॉप पे. कोई बात ठीक. नेक्स्ट टाइम मैं इसको बॉटम में कर दिया करूंगा. थैंक यू सर. असल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम रिकॉर्डिंग के अंदर कह नहीं सकते तो इसलिए फिर अवॉइड कर लेते हैं. वो आप बाकी समझ ही गए होंगे. ठीक है सर. जी सर ये एग्जाम्पल 4 के जो लास्ट में ये पीरियड दिए हुए हैं ये जरा समझा दें सर. 3 तक सबने कर लिए जी. वसीम गिल एग्जाम्पल सबसे हो गई है. सबसे हो गई एग्जाम्पल 3. कोई है जिसे एग्जाम्पल 3 ना समझ आई हो गई सर? सही, गुड. चले जी एग्जाम्पल 4 में. एग्जाम्पल 4 में ये क्या कह रहे हैं कि हाँ जी, इसको सॉल्व करने के लिए ना जरा थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लें. ये बेटा ये विजिबल है स्क्रीन? यस सर. ओके जी. एमसीक्यू प्राइवेट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग लोन्स आउटस्टैंडिंग एज ऑफ December 31, 2005. अच्छा, लोन 1 जो है 6% पे है 3 लाख का. ठीक है. लोन 2 8% पे है 2 लाख का. और लोन 3 जो है वो 1.5 लाख का 9% पे है. ऑल थ्री लोन्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. इसका मतलब ये होगा कि करंट ईयर में कोई नया लोन आपने नहीं इशू किया. अगर आपने कोई नया लोन इशू किया होता, जो कि एग्जांपल नंबर 5 में या 6 में आई थिंक उन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड कोई नया लोन लिया है, तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है. वो मैं आपको थोड़ी देर में बाद में करवाता हूँ. लेकिन अगर आपने जो कोई नया लोन नहीं लिया, ये तमाम लोन आपने पिछले सालों में ही लिए हुए थे और उसमें से आप पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होता है वो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है. और अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि तमाम लोन्स पिछले सालों में लिए थे, करंट ईयर में कोई नया लोन हमने नहीं लिया हुआ. ठीक है. लेकिन ऐसे एमसीक्यूज भी आपके पास मैं इंशाल्लाह आपसे करवाऊंगा जिसके अंदर ड्यूरिंग द पीरियड आपने लोन लिया है उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, ऑल 3 लोन्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. नीदर लोन इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर नॉर इज पेड. द कंपनी स्पेंट बोरोइंग कॉस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एज अंडर. 31 जनवरी को आपने पे किया है जी 70,000 रुपया.
अच्छा, आप ये कब की बात कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2005 की बात कर रहे हैं, ठीक है ये। अच्छा, और इट मीन्स के 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपने पूरे साल को देखना है। तो आप मुझे बताएं कि 31 दिसंबर तक ये 70,000 कितने महीने के लिए इस्तेमाल हुआ था? 11 मंथ ये 11 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसको करेंगे 11/12, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो अप्रैल 1 का है, ये 9/12 होगा, क्योंकि ये 9 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दिसंबर जो है ये 1/12 के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट करना है। तो वो आप कैसे कंप्यूट करेंगे? जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ था, सेम जगह वही फॉर्मेट है। उसमें आपने टोटल इंटरेस्ट कंप्यूट कर लिया 47,500, इसको डिवाइड करेंगे 6,50,000 से, तो 7.31 आएगा। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट करना है ना, तो कैलकुलेट करें 70,000 मल्टीप्लाई बाय 7 आप छोड़े सोल्यूशन को जो भी दिया हुआ है, आप 7.31% मल्टीप्लाई बाय 11/12, फिर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7.31% मल्टीप्लाई बाय 9/12, और तीसरा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7.31% इंटू 1/12। जी बेटा, क्या आंसर आएगा पहले का? 4689 जी 89 4689। दूसरे का 4386 4386। तीसरे का 61 तीनों को ऐड करें 9136 9136। देखिए, इसका सॉल्यूशन यही दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, सॉल्यूशन तो यही है सर। इसमें आप पीरियड का दोबारा बता सकते हैं एक दफा? जी जी बताइए। जी जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? सर टाइम पीरियड का पूछा था, लग गया समस्या, ऊपर लिखा हुआ है दिसंबर 31। जी जी, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन एग्जांपल नंबर 4 में? इन्होंने मेरे ख्याल सोल्यूशन में भी शायद यही दिया हुआ है। नेक्स्ट में 9136 है। हाँ जी, देखें वही सेम। अच्छा, ये फॉर्मेट आपकी मर्जी है, आप ऐसा बना लें या वैसे बना लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में तो आपने वर्किंग ही करनी होती है ना, वो आपने टाइम भी शॉर्ट होता है, तो फॉर्मेट का आप देख लीजिएगा, टाइम के ऊपर आप फिर मैनेज कीजिएगा। सर एक दफा ना ये पीरियड को दोबारा बता दें, जो हमने जनवरी का हमने स्पेंड किया जनवरी 31, 2005 में। हाँ, हमने 11/12 क्यों किया इसको? बाकी 11 माह बच गए हैं। आज क्या डेट है? ये किस डेट की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है? 31 दिसंबर 31। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर से कितने महीने गुजरेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है सर, 11 माह। 11 महीने जी। अब देखिए ना, यहाँ पे 1 फरवरी लिख देता तब भी 11 महीने होते हैं, उसने 31 जनवरी लिख दिया। जी सर। ठीक ठीक है। सर जी जी,
سر اگر ایگزام میں آتا ہے تو ورکنگ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جس طرح بھی ہم لوگ کرنا چاہیں؟ دیکھیں اس میں کوشش تو یہ ہے کہ آپ اس کی کلیئرٹی رکھیں، کیونکہ اب مجھے اس کا ان کی پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات آپ کو یہ سبمٹ بھی کروانے ہوتے ہیں پیپرز جو ورکنگ آپ نے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کلیئرٹی رکھیں، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں، تو ورکنگ نوٹس ایسے ہوں کہ اگر آپ کو سبمٹ کوائیں اور سبمٹ کروانے پڑیں اور سبمیشن کی بیس کے اوپر ویریفیکیشن لوگ کریں تو وہ اگلے کے لیے پڑھنے والے بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے کویشچن نمبر ڈال کے باقاعدہ آپ اس کی ورکنگ اپنا رجسٹریشن نمبر، اپنا نام، ہر چیز اس کے پیج کے ٹاپ پہ، وہ پھر ان کو سبمٹ کروائیے گا. جی رائٹ سر جو ہم ایم ایل سر جو ہم ایم ایل 1 تک پیپر دیتے رہے ہیں اس میں تو مطلب کہ جو اکاؤنٹنگ کے پیپرز تھے ہم نے کوئی ورکنگ وغیرہ نہیں کی تھی، جسٹ ایم سی کیوز کے آنسر لگا دیے تھے. پالیسی چینج ہو سکتی ہے نا جی، اب ہو سکتا ہے کہ وہ پالیسی چینج کر دیں. انسٹیٹیوٹ کی پالیسیز آپ کو پتہ ہے ایگزام سے پہلے آتی ہیں. یس سر. ہاں، ہر دفعہ کی کوئی دیکھیں نا، اب یہ لاک ڈاؤن ہے، اس میں ہر چیز کو لوگ انشور تو کریں گے نا کس نہ کس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ہر کنڈیشن، کیونکہ دیکھیں یو آر میکنگ یور سیلف یا ٹارگیٹنگ یور سیلف ٹو دی پوسٹ آف سی ایف او اور سی ای او آف دا کمپنی. اور سی ای او اور سی ایف او جو ہے وہ اس کو ہر وقت ہر چیز اور ہر ممکن پاسبل سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سر پریکٹیکل لائف میں اگر یہاں جیسے 30 جنوری ہے اور 31 ہے تو یہ 1-2 دن کا بھی کوسٹ چلتی ہے. ہاں، اس میں نا ایک کنونشن ہم لوگ فالو کرتے ہیں اکاؤنٹنٹس کہ اگر 15 دن، یہ سن لیجیے بڑی امپورٹنٹ کوشچن بچے نے کیا ہے کہ اگر 1 سے لے کر 14 ڈیز تک ہے، 14 ڈیز تک، تو وی ول assume the first، ٹھیک ہے، آف کرنٹ منتھ. ٹھیک ہے جی، یہ پریکٹس بتا رہا ہوں، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے وہ اس کو ریفر نہیں کرنا. لیکن اگر 15 سے لے کر 31 تک ہے ڈیز ہیں تو وی ول assume first of the following month. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ سر اس assumption کا آڈٹ کیسے ہوتا ہوگا پھر اگر یہ assume ہی کر رہے ہیں تو؟ یار یہ پتا کیا، یہ مٹیریلٹی پہ بھی بیس کرتے ہیں. آپ اس کو بتا دیں گے نا، آڈیٹر کو بتا دیں گے یار ہمارے لیے کہ یہ assumption ہے، ٹھیک ہے؟ نارملی دیکھو نا، اب آپ ہر چیز کو فرسٹ پہ نہیں نا کر رہے ہوتے. اب جیسے آپ کتنے سارے سوال ہیں کہ یہ دیکھو نا، اب یہ آپ نے خرچے کیے ہیں، تو آپ خرچہ کرنے کے لیے فرسٹ کا ویٹ تو نہیں نا کرو گے کہ ہمیں کیلکولیشن میں مسئلہ بنے گا، ہمیں آڈیٹر کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اب آپ کو مثال کے طور پہ آپ آج 15 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو خرچہ کرنا ہے، تو آپ صرف اس لیے خرچہ نہیں کر رہے کہ یار ہم کیلکولیشن کریں گے تو وہ جسٹیفائی کیسے کرنا پڑے گا. تو آپ ایسا کرو، 15 دن کا ویٹ کرو، فرسٹ آنے دو پھر خرچہ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا پریکٹیکلی، تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ اس کو ریکارڈ مینٹین کرتے رہتے ہیں، لیجر نکالتے ہیں، لیجر میں ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، کوئی زیادہ آڈیٹر ہے نا، جو زیادہ وہ ہے تو وہ نمبر آف ڈیز پہ چلا جائے، پھر وہ پتہ ہے کرے گا، پھر وہ یہ کرے گا کہ 1/12 نہیں کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا 30/360 کیا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر کیا کرے، وہ 1/12 نہ کرے، وہ کرے 30/360، پھر وہ نمبر ڈیز پہ چلا جائے. ٹھیک ہے، پھر اگر کسی نے پریسائز کرنا ہے نا تو وہ پھر اس پہ چلا جائے، وہ ڈیز پہ چلا جائے. پھر یہ 31 نہیں ہوگا، ہوگا 15 ہو جائے گا، 17 ہو جائے گا، 19 ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، پریسائز ہی کرنا ہے نا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، فائنینشیل رپورٹنگ کی جو کاسٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کے بینیفٹ سے زیادہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے بینیفٹ سے. اگر آپ ایکوریسی کر رہے ہیں لیکن اس ایکوریسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے لیے ایکوریسی بیکار ہے. نارملی یہ جو assumption لی جاتی ہے نا، جو میں نے لیفٹ پہ لکھی ہے، یہ والی، یہ فار دا سیک آف سمپلسٹی لی جاتی ہے اور مٹیریلٹی کو آپ کرتے ہیں کنسیڈر. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نمبر آف ڈیز پہ جاؤں گا تو زیادہ ایکوریٹ اور ریلائبل انفارمیشن میرے یوزر کو ملے گی، تو پھر آپ نمبر آف ڈیز پہ جائیں، پھر آپ منتھ کو اگنور کریں. ٹھیک ہے ٹھیک، جی اوکے.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें ना एक चीज बस चेंज है कि इन्होंने क्या किया है कि जो HBL का लोन है वो 1 जुलाई को इन्होंने बोरो किया है, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा कि इसकी जो वर्किंग होगी वो इसकी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 1 जुलाई से ही करेंगे इसको। जब आप ये इसका वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे ना, तो HBL का जो इंटरेस्ट है वो 1 जुलाई से ऑनवर्ड लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो आप उसको भी वेटेड एवरेज कर देंगे और इंटरेस्ट को भी वेटेड एवरेज कर देंगे। हालांकि फर्क उससे कोई नहीं पड़ेगा, रेट वही आएगा, लेकिन बहरहाल वर्किंग उन्होंने की भी है इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा आप, इसमें कोई मसला तो पूछिएगा। अच्छा, अब यहाँ से इस स्टैंडर्ड की ना कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड की ना मजीद रिक्वायरमेंट आ रही है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना जी, ये पैराग्राफ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्किप, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे जाके, यहाँ पे आप लिख लें कि यहाँ पे IS 36 लिख लें साथ में, IS 36, ठीक है। ये इम्पेयरमेंट जब हम पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, तो इम्पेयरमेंट जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये फिर आप इसको जब आप उस पढ़ने के बाद ही पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो आपको जस्ट एक दफा पढ़ने में समझ आ जाएगा ये पूरा पैराग्राफ। सर अपने सिस्टम की सेटिंग्स आप फुल करते हैं, बड़ी करते हैं सर। अच्छा, जूम इन कर, ओके। अच्छा, अब कोई पॉइंट नंबर 3 है, यहां से अब कुछ स्टैंडर्ड की ना स्पेसिफिक प्रोविजंस आ रही हैं। कमेंसमेंट, सस्पेंशन एंड सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करने को, सस्पेंशन कहते हैं रोक देने, यानी थोड़ी देर के लिए रोक देना, ठीक है। और सेसेशन कहते हैं खत्म कर देना, ठीक है। ये 3 इश्यूज हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि कमेंसमेंट कब शुरू करनी है आपने कैपिटलाइज करने की। हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो तब आपने कमेंस करना है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन IS की वर्डिंग में जरा इसको देखें। IS कहता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शैल कमेंस व्हेन, ठीक है। और यहां पे ये तीनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी हैं। ऑल कंडीशंस मस्ट फुलफिल। ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी नहीं होगी तो आपने कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं करनी है, ठीक है। ये लिख लें ऑल कंडीशंस। यहाँ पे इसमें ऑल कंडीशन का वर्ड यहाँ व्हेन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने इसको मजीद इंफोसाइज कर दिया कि इस तीनों का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, इट इंकर्स एक्सपेंडिचर फॉर दैट एसेट, यानी वो एसेट अब बनाना शुरू कर, उस एसेट पे खर्चा शुरू हो जाए, ठीक है। नंबर 2, इट इंकर्स बोरोइंग कॉस्ट, कि बोरोइंग कॉस्ट इंकर करना शुरू हो जाए। और नंबर 3 है कि इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इट इंटेंडेड यूज और सेल। और वो जो एक्टिविटीज हैं जो आपने उसको बनानी है, उस एक्टिविटीज को बनाने के लिए आपकी वो जो एक्टिविटीज है वो चल रही हो, वो रुकी भी ना हो, यानी आपकी एक्टिव कंस्ट्रक्शन हो रही हो। तो ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर जाके आप जो है वो अपनी कमेंसमेंट शुरू करेंगे, यानी कमेंसमेंट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। जी सुमेरा। Sir, can you repeat number A part? I didn't get the point. बेटा ये इट इंकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट का मतलब ये है कि आपने एसेट को बनाने के लिए खर्चे शुरू कर दिए हैं। अच्छा, जिस टाइम स्टार्ट हुई चीज। जी जी, अब देखें ना, आपने बिल्डिंग बनानी है तो ईंटें परचेज करना शुरू कर दी हैं, सीमेंट की बोरियां लेना शुरू कर दी हैं, सरिया लेना शुरू कर दिया है। अब वो लैंड की परचेज से स्टार्ट हो गया इस पे एक्सपेंडिचर।
लैंड की परचेज में बीच में लैंड की परचेज भी चलें आप, वो भी शुरू कर, वो भी ले लें अगर आपने, अगर हाँ आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपके पास अभी लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, और आपने कहा जी कि हम ज़मीन ढूंढेंगे, वो ज़मीन भी हम बैंक की बोरिंग से परचेज करेंगे, ठीक है, तो हाँ फिर अब ज़मीन की जो आपने कमीशन देना शुरू किया, अखबार में ऐड दिया, वो सारी चीज़ें, आपने बैंक से लोन तो ले लिया हुआ है ना जी, अब आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपने ज़मीन खरीदनी है, अब उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीदी, डील कर ली, डीलर को आपने कमीशन पे किया, अब खर्चे शुरू कर दिए ना आपने ज़मीन खरीदने के, तो यस कंस्ट्रक्शन, फिर आपने जब ज़मीन खरीद ली तो आपने उसके अंदर अब बेसमेंट बनानी है या जो भी बनाना है, आपने खुदाई शुरू कर दी है, ईंटें खरीदना शुरू कर दी हैं, इन शॉर्ट कि आपने खर्चे शुरू कर दिए ज़मीन को या उस एसेट को बनाने के लिए। ठीक है सर। जी जी गुड जी, और कोई सवाल बेटा? सर ये सेकंड पॉइंट भी बता दिए। सेकंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि बोरोइंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाए। बाद बार ऐसा होता है कि आप बैंक से अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन बैंक कहता है जी आपको शुरू के 3 महीने हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, तो शुरू के इंटरेस्ट 3 महीने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ तो शुरू के 3 महीने कैपिटलाइज भी कुछ नहीं होगा। सर चाहे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? यस, चाहे हुई है नहीं हुई है, बिल्कुल। भाई देखिए ना, मिसाल के तौर पे आपने एक करोड़ रुपए का लोन लिया, बैंक ने कहा यार आपको 3 महीने माफ करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने पहले दिन से शुरू कर दी, ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन, ये तीनों कंडीशंस कब जाके पूरी होंगी? ये 3 महीने बाद जाके पूरी होंगी। ये तीनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी है जी। लोन आपको आज ही मिल गया है और आपने आज वो पैसे लेके ईंटें खरीदनी शुरू कर दी हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी ना वो 1 अप्रैल से पड़ना शुरू होगी, तो फिर आप 1 अप्रैल से शुरू करोगे। लेकिन सर हमने मटेरियल तो 1 जनवरी से लेना चाहिए, लेकिन वो तीनों कंडीशंस तो जाके पूरी आपको अप्रैल में होंगी ना, ये तीनों स्टैंडर्ड ने बताई कंडीशन आपको। सर जब हमने काम तो शुरू कर दिया उसके लिए, लेकिन चीजें अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी है, देखिए फर्स्ट कंडीशन तो पहले से पूरी एडवांस पेमेंट दे दी है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी तो नहीं ना पूरी हुई, तो अभी तीनों कंडीशंस पूरी तो होंगी तब शुरू करेंगे अप्लाई करना। अगर बैंक ने रिलीफ दिया हुआ है तो उसको हमने नहीं करना, वो पीरियड नहीं लेना, उसके बाद यार मेरी बात मैंने क्योंकि सर हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं बैंक को, तो हम उसको कैपिटलाइज क्या करेंगे? यार सीधी बात, बिल्कुल तूने सारा मसला ही हल कर दिया मेरा। सर यही बात है, ठीक है ना, जब इंटरेस्ट कॉस्ट ही नहीं है तो केड़ी कैपिटलाइजेशन की बात, जब खर्चा ही नहीं पा रहा, वही बात सर, बिल्कुल भाई ने बंद कर दी, जबरदस्त, जिंदाबाद। गल नहीं मुकाती यार, क्या बात, काश वो सामने होता मेरे, मुझसे को क्या छोड़े। हाँ जी गुड, वेल डन, बस थोड़े दिन ही रह गए सामने होने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद है जी इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज, ये भी हो गई। और कोई सवाल जी? गुड। अच्छा देखें, ये आईएएस ने अपने आप को मोहतात किया है। देखें ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, बहुत मोहतात हैं, क्योंकि लोग कोई लूप होल ना निकाल लें, ठीक है, इस वजह से ये मोहतात है। हालांकि आप देखें, आप मुझे बताएं कि जिस बेटी ने सवाल किया था कि पहला वाला के सर पहले समझाएं, मुझे बताएं पहले और सी में क्या फर्क है? एक ही तो बात है आपस में। भाई देखें ना, एक्सपेंडिचर इंकर होना और एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट, वो एक ही तो बात है, ये एक बात नहीं है। सुनिएगा, पहली कंडीशन में क्या है कि आपने मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया है, यानी आपने ईंटें खरीद के रख ली हैं, आपने सरिया खरीद के रख लिया है। जो सी में बात कर रहा है वो कि आपने अभी खुदाई शुरू नहीं की है, आपने अभी चुनाई शुरू नहीं की है, आपने अभी उसमें एक्टिव कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की है, ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया है कि माल खरीदा और कहीं पे साइड पे स्टोर करके रख दिया, लेकिन आपके पास मजदूर ही नहीं है, मजदूरों से आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया हुआ, ना आपने लेबर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कहने को आपने 10 करोड़ रुपए का मटेरियल लेके साइड पे लगा दिया, ठीक है, तो वो कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन भी है कि उस मटेरियल को भी इस्तेमाल भी करना शुरू करें ना, आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें फिर, ठीक है। जैसे सर कालाबाग डैम का मटेरियल वेस्ट हो गया, चलो वो फिर अब एक और कोई चीज है, एक चीजें लेके रखी हुई थी ना, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो जब बना ही नहीं तो उसको कैपिटलाइज क्या करेंगे, उस जितनी भी मशीनरी थी जो भी। सही कह रहा हूँ, ओके
अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें जी, ये जरा एक छोटा सा केस है, ये एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आएंगे जी, ये सिल्वर स्टार प्राइवेट, ये जरा पढ़ें और फिर इस पर सोल्यूशन चेक करें और इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जरा पढ़ें फिर कोई, इसलिए मैं आपको क्लास के अंदर रीड करवा रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, समझ लग गया। जैसे लग गया। तो वही ऊपर वाली बात है सर, वही है, एक माह बाद उसने सॉल्व किया तो वहां से होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये ऊपर जो हेडिंग थी ना, उसमें 3 चीजें थी, कमेंसमेंट, सस्पेंशन एंड सेसेशन। तो हमने कमेंसमेंट को डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट एरिया है सस्पेंशन का। सस्पेंशन को जरा डिस्कस करें जी, सस्पेंशन की बात हो रही है। सस्पेंशन कहते हैं टेम्परेरी तौर पे कैपिटलाइजेशन प्रोसेस को रोक देना, यानी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन आपने कैपिटलाइजेशन करना रोक दी है, खत्म नहीं की है, रोक दी है। अच्छा, ये नॉर्मली कब होती है, ये समझ लें, फिर आप ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली होता ये है कि जब एक्टिव कंस्ट्रक्शन या जो ऊपर 3 कंडीशंस थी उसमें से कोई एक पूरा होना बंद हो जाए या टेम्परेरी तौर पर रुक जाए। मिसाल के तौर पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया कि जी इस साल कंस्ट्रक्शन बिजनेस बैन है, मजदूर काम नहीं करेंगे, तो बिल्डिंग बनते बनते रुक गई। ठीक है, अब आपने इंटरेस्ट तो पे करना है ना, बैंक से तो आपने लोन लिया हुआ है, अब आपने जो बैंक को इंटरेस्ट पे करना है ना, वो आप एक्सपेंस आउट करोगे, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही लेकिन आप इंटरेस्ट बेयर कर रहे हो, वो इंटरेस्ट आपकी एक्सपेंस है, आप कैपिटलाइज करना रोक देंगे। तू सो गया था इसलिए मैंने आया नहीं। जी हाँ, मैं क्या बात कर रहा था जी? सर ये दोबारा रिपीट कर दें, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। ये कमिटमेंट्स का जो है ना पॉइंट, ये दोबारा वो करते हैं एक्सप्लेन। कमेंसमेंट का ये मतलब है ना कि जब 3 कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएंगी ना, तो आपने कमेंस करनी है, आपने स्टार्ट कर देनी कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी आपकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी हो, आपके एक्सपेंसेस हो रहे हो और आपकी बोरोइंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाए, ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो आपने वहां से कैपिटलाइजेशन शुरू कर देनी है, उससे पहले सारा एक्सपेंस आउट करना है। ठीक है, सस्पेंशन कहते हैं कि आपने थोड़े अरसे के लिए या कुछ अरसे के लिए आपकी कंस्ट्रक्शन रुक गई थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग बनते बनते अचानक कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा जी ये सब कुछ बंद करें, लॉकडाउन है और आप एम्प्लॉइज को भेज दें जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आपके पास क्या हुआ, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रुक गई है, अब जितने पीरियड तक ये रुकी रहेगी उतने पीरियड तक आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है। ठीक है, इसी एग्जांपल उन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई, आगे देखिएगा कि खालिद रऊफ, ये तो हर कोई डायरेक्टर की बात है या खालिद रऊफ कोड लाइन लिखी हुई है कि व्हेन टेम्परेरी डिले इज नेसेसरी। हाँ जी, बेसिकली होता ये है कि गुड, अगर कोई डिले पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल ये है कि आपने छत डलवाई, लेंटर डल गया आपका। अब लेंटर जब डलता है तो नॉर्मली ये होता है कि लेंटर को पहले सूखने देते हैं थोड़े दिन के लिए, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। अब जो ठेकेदार था उसने कहा जी सर जी 7 दिन तक ਅਸੀਂ छुट्टी करांगे कि 7 दिन के बाद ਅਸੀਂ काम शुरू करांगे, 7 दिन तक कोई काम नहीं होगा। अब ये जो 7 दिन की छुट्टी हुई है ये उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा था, क्योंकि ये छुट्टी आपने जानबूझ के नहीं की है, ये अगर छुट्टी ना करते तो बिल्डिंग तो भी पक्की नहीं है। अभी कल लेंटर डाला है आपने, पता लगे जी अगले दिन आपने चुनाई शुरू कर दी, वो नीचे गिर जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा डिले जो कि उस प्रोसेस का पार्ट है और उस डिले को करना जरूरी है तो फिर वो उतने पीरियड के लिए आपको नहीं रोकेंगे कैपिटलाइज करना। ठीक है जी, लेकिन बाद ये होता है कि आप कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई लॉकडाउन हो जाता है, कोई वैसे जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनसे कोई झगड़ा हो जाता है आपका, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उस पीरियड के अंदर आप फिर
कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे. गुड पॉइंट दानिश, सर वेरी गुड. कब्जा माफिया की सूरत में क्या करेंगे? कब्जा माफिया भी वही है, अनअवॉइडेबल ही है ना यार. मतलब उसमें भी आप एक्सपेंस ही करेंगे, क्योंकि देखें वो अब आपकी अपनी गलती होगी. यार नॉर्मल कोई चीज है. तो ये नहीं पता है ना कि माफिया भी है यहाँ. चलें, अल्लाह पाक हमें हर चीज से महफूज रखे. इस तरह का या अल्लाह खान साहब जी. खालिद रऊफ कंपनी, ये या पढ़े जरा इसको फिर देखें. ठीक है जी. जी जी बेटा. ओके, अब ये थर्ड एरिया है सेसेशन और कैपिटलाइजेशन. इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि जब आप कैपिटलाइजेशन रोक देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी सब्सटेंशियल तमाम वर्किंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, ये जरा पॉइंट पढ़े. एन एंटिटी शैल सीज कहते हैं खत्म करने को, कैपिटलाइजिंग borrowing costs when substantially all of the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. तमाम चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आप अपना कैपिटलाइजेशन खत्म कर देंगे. 3 चीजें थी, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन. कमेंसमेंट के 3 कंडीशन थी. सस्पेंशन जब आपकी कोई एक्टिव कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, और सेसेशन का मतलब ये होता है कि अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप बंद कर दें. इसके बाद जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा एक्सपेंस आउट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस रिपोर्ट होगा, कैपिटलाइज नहीं करेंगे. ठीक है, इसके लिए भी एग्जांपल दी हुई है. ये देखिए माशाल्लाह बुक के अंदर हर चीज के हर एरिया के ऊपर एक अलग एग्जांपल उन्होंने बना के दी हुई है. इट्स वेरी गुड. ये जरा 2 पैराग्राफ पढ़ें. ये एग्जांपल 8. जी बेटा सुमेरा. जी सुमेरा पूछे बेटा सवाल. जी पूछे सवाल. जी एसेट आज मेरा फर्स्ट डे है, काइंडली बुक का नेम शेयर कर दें. आई डोंट हैव एनी रिसोर्स मटेरियल. अच्छा जी, इसमें आप ऐसा करें कि हमारी एक कोऑर्डिनेटर है मिस ताबिंदा, ठीक है, उनसे रब्ता करें. वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगी. और मेरा एक शेयर्ड फोल्डर है गूगल ड्राइव का, उसका वो आपको लिंक भेज देंगी. ठीक है, तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल अब तक मैंने भेजा हुआ है, चाहे वो बुक है, चाहे वो MCQs हैं, मेरी स्लाइड्स हैं, पास पेपर्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, हर चीज़ 1 to all. आज 21st क्लास है जी हमारी, 21st. ठीक है जी, तो 21st क्लास से जो कुछ भी हो चुका है वो सारा उस फोल्डर में पड़ा हुआ है. तो आप पहले मिस तबिंदा से रब्ता करके अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाएं. ठीक है, और दूसरा वो उनसे लिंक ले लें उस फोल्डर का. ठीक है बेटा. ठीक है सर. मिस ताबिंदा को कैसे अप्रोच करूं? मिस ताबिंदा से कैसे अप्रोच करें, तो आप ICMAP लाहौर कॉल करें. ठीक है, मिस ताबिंदा से अप्रोच हो जाएगा.
आप उनसे भैया जी मिस तबिंदा से बात कराएं। मिस तबिंदा अगर क्लास में हैं तो वो बता दें जी उनसे कैसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है सर हमें इस फोरम पे ना कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते, इट इज ए पब्लिक फोरम। ठीक है बेटा, ठीक है सर, कोई आप जो है ना आप उनसे कांटेक्ट करें, बता दें। जी बेटा, कोई और सवाल? सर एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, उन्होंने दिया है मुझे लिंक। हाँ तो आपका क्या नंबर है बताएं मुझे। 0334 बस 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 एक मिनट रुकिएगा। लास्ट टू डिजिट क्या है 89 नंबर के? लास्ट टू डिजिट क्या है? 59। ओके 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 बेटा, आप एडिट हो गई हैं तो बस आप मिस तबिंदा से मैसेज, जो एडमिन है ना उस ग्रुप की, उनको कहें कि मुझे लिंक भेज दें। ठीक है बेटा, गूगल ड्राइव का। ओके, थैंक यू सर। जी सर जी जी सर प्लीज एग्जांपल 8 को समझा दीजिएगा। हाँ, एग्जाम्पल 8 में एच कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट फॉर इट्स इंटरनल यूज। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2009। The asset was completed on 31st जुलाई 2009। अब देखें इन्होंने क्या किया है कि 1 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई तक कंप्लीट हो गया, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने लगे हैं चीज को। ठीक है, इट वाज पुट इनटू यूज ऑन सितंबर 15। ठीक है, अब जुलाई 31 को ये बन चुका था। ये आपका अपना डिसीजन था कि उसको सितंबर 15 को पुट करें, और जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है वो नवंबर में स्टार्ट हुई है। आईएस कहता है कि जब एक एसेट कंप्लीट हो जाएगा ना, बस उस डेट तक आपने कैपिटलाइज करना है, यहां से शुरू करना है और यहां पे कैपिटलाइज करना है। ये वाली डेट इररेलेवेंट है, ये वाली डेट इररेलेवेंट है, क्योंकि उसके बाद तो प्रोडक्शन नहीं ना हुई, उस कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई एसेट की। उसके बाद तो आपने उसको यूटिलाइज करना था, वो आपका डिसीजन था, वो आपने नहीं किया, आपकी गलती है। लिहाजा कॉस्ट आपने जो चार्ज करनी है, जो कैपिटलाइज करनी है, वो इस पीरियड के दौरान करनी है। ठीक है सर, हम अगर कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके एंड पे हम फिर उसका पेटेंट वगैरह बनवाते हैं, तो जब तक पेटेंट बनवा रहे हैं तब तक वो कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट हमारा? नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर मैं भी इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि रिसर्च के ऊपर भी बहुत सारी कंडीशंस IS 38 ने लगाई हुई हैं। ठीक है, ये IS 38 इंटेंजिबल्स के अंदर ना 6 कंडीशंस पूरी होना जरूरी हैं, तब जाके हम कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं। सिर्फ रिसर्च का वर्ड जो है ना, ये बड़ा वेग सा वर्ड है। ठीक है, हाँ, पेटेंट जब आप की बात आपने की ना कि पेटेंट जो है ना वो रिसर्च वर्क में नहीं होता, वो डेवलपमेंट वर्क के अंदर बनता है। ठीक है, तो वो R&D एक्टिविटी में जो R है ना, वो उसका ट्रीटमेंट अलग है, D का ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है, वो इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। ओके सर। जी सर, इसके सॉल्यूशन का जो सेकंड पैराग्राफ है, इफ माइनर मॉडिफिकेशन, ये थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कर दें। देखिए बेटा, वो पता क्या होता है, बाज़ बात होता है कि आपने बिल्डिंग बना ली है, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग का जो मेन गेट था ना वो आपने चेंज करवाया है। ठीक है, अब मेन गेट चेंज करवाने से कोई इतना मेजर नहीं है। भाई बिल्डिंग तो खड़ी हो गई है, पूरी बिल्डिंग तैयार हुई, आपके ऑनर ने कहा यार मेन गेट जो है ना ये सही नहीं है, इसको चेंज कर दो। या बाउंड्री वॉल थी ना, इसको प्लस्तर आपने सही नहीं किया, प्लस्तर उखाड़ के ना इस पर डिज़ाइन बनवाएं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट जो है ना, ये इमटेरियल है, इसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, देखा ये जाएगा कि सब्सटैंशियल एक्टिविटीज कहां तक कंप्लीट हो गई हैं, ये भी प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है, जैसे पिछली एग्जांपल में 31 जुलाई 2009 को एक काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, ऑनर को ये याद आया नवंबर में जाके कि यार ये जो मेन गेट था ना ये चेंज कर दो। अब सिर्फ मेन गेट चेंज करने की वजह से ये जुलाई से नवंबर का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनर मॉडिफिकेशन। मेजर काम तो जुलाई 31 कंप्लीट हो चुका हुआ है।
ठीक है बेटा. अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल 9 है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. अब आप लोग काफ़ी हद तक मैंने ये स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है. इस स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है जी अब. ठीक है, अब आपका कल का होमवर्क ये है कि एक तो ये जो बाकी 1-2 पेजेस रह गए हैं इनको आपने कंप्लीट करना है, वो आपने आज वैसे कर लिया होगा. और जो आपको मैंने MCQs की लिस्ट बताई थी, जैसे आपको मैं दोबारा बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स आज नए ज्वाइन किया है, ये जी, ये MCQ बैंक में जो MCQs हैं, ये MCQ बैंक में पेज नंबर मैंने साथ में लिख दिया है. ठीक है, ये सेकंड पोर्शन में जो MCQs है, जो हमने IS 16 के MCQs किए थे ना, उसके फौरन बाद ये एक हेडिंग है, अगर आप निकालें, मैं आपको दिखा देता हूँ MCQ बैंक खोल के. जी बेटा, ये जो आज स्टूडेंट नहीं है वो ज़रा देख लें. ये MCQ बैंक अलग है, बुक हमारी अलग है. MCQ बैंक का बेटा ये पेज नंबर बनता है 233 पे. अच्छा, पहले ये हेडिंग देख लें, नॉन करंट एसेट सन्ड्री स्टैंडर्ड्स. इसमें 3 स्टैंडर्ड्स इन्होंने कवर किए हुए हैं, IS 20, 23 और 40. क्योंकि हमने अभी 23 को पढ़ा है तो मैंने आपको MCQ नंबर आइडेंटिफाई कर दिए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको MCQ नंबर 5 है, 5, 6, 7, 8 4 MCQs हैं. तो 5, 6, 7, 8 यानी 5, 6, 7, 8. क्योंकि इस चैप्टर में 3 स्टैंडर्ड्स के MCQs कंबाइंड थे, मैंने आपको अलग अलग MCQ नंबर डिफाइन कर दिया है. ठीक है, ये टोटल बनते हैं जी तकरीबन 13 MCQs. ये आपने कल सॉल्व करके लाने हैं. ठीक है, लेकिन पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर मैच करें. कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे आपने क्लास में कल पूछना है. कल हम आधा घंटा या 15 मिनट इस IS 23 को मजीद देंगे. उसके बाद हमने IS 20 स्टार्ट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ग्रांट्स का. ठीक है जी, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड है IS 40 का. ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम कंप्लीट जब कर लेंगे तो फिर हम अपना आगे सिलेबस लेके चलेंगे. जी यासीन साहब. सर कल कौन सा स्टार्ट करना है, IS 40 या IS 20? 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स. ओके सर, थैंक यू. सर जी, जो हम कंप्लीट करें कोई टेस्ट वगैरह भी होगा कि नहीं? टेस्ट आपका IC में लेगा जी इकट्ठा ही. वो तो पेपर ही होंगे फिर. बस फिर वही है. ये देखें, आपको जो मैं ये दे रहा होता हूँ ना, ये जो प्रैक्टिस है, ये आपका टेस्ट ही तो होता है. ये आपका सेल्फ असेसमेंट है. ये सेल्फ असेसमेंट है ना जी. आप खुद सॉल्व करेंगे, आप खुद ही एग्जामिनर हैं, खुद ही स्टूडेंट हैं. खुद सॉल्व करें, खुद ही चेक करें. ठीक है, कोई मसला है तो मुझसे पूछें. ये प्रोफेशनल स्टडीज हैं. इसके अंदर हम जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ना, यानी क्लास के दौरान एक्टिविटीज का पैटर्न है, जरा डिफरेंट होता है. ठीक है, हाँ, इसमें आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट है. ठीक है, इंशाल्लाह क्विज का भी प्लान कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सिलेबस जरा चलने दें. सिलेबस अभी हमारा चला नहीं सही तरीके से पूरा. चलने से मुराद ये है, और आपको 21 क्लासें हो गई हैं, अभी चला नहीं है. चलने से मुराद ये है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हम काफी हद तक कर लें, कम से कम नॉन करंट पूरा कर लें. नॉन करंट तो पूरा कर लें ना, कम से कम लीजिंग तक कर लीज. हाँ, लीज पूरा कर लें. लीज के बाद इंशाल्लाह हम एक टेस्ट रखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव. सर ये जो आप MCQs कहते हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट से चैप्टर कौन सा है? ये गवर्नमेंट ग्रांट में ये आपको आएगा जी, हमारे जो क्वेश्चन, नहीं पेज नंबर, जो हमारी बुक है ना, उसका पेज नंबर नोट करें जी. बुक का पेज नंबर नोट करें जी. बुक का पेज नंबर है 216, 216. ये बुक की बात कर रहा हूं मैं, MCQ बैंक की बात नहीं कर रहा, बुक की बात कर रहा हूं. अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस, IS 20. ये इंशाल्लाह हमने कल पढ़ना है जी. ठीक है जी, अज़ानें शुरू हो गई हैं. इंशाल्लाह विल मीट टुमारो. अल्लाह हाफिज. ये MCQs कल आप सॉल्व करके लाइएगा जी.